پانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے میں بڑی پیش رفت۔ واسا کو تاجپورہ میں بڑے واٹر سٹوریج ٹینک کی منظوری مل گئی۔ واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر کے لیے 90 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ واٹر سٹوریج ٹینک 32 لاکھ گیلن پر مشتمل دوسرا بڑا ٹینک ہوگا۔ بارشی پانی کو محفوظ اور قابل استعمال بنایا جائے گا۔ شہر میں ایک اور واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کی منظوری مل گئی۔ تاجپورہ میں بڑا واٹر سٹوریج ٹینک بنایا جائے گا۔ واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر پر 90 کروڑ لاگت آئے گی۔ واسا کا تاجپورہ میں منظور ہونے والا واٹر سٹوریج ٹینک 32 لاکھ گیلن پر مشتمل دوسرا بڑا ٹینک ہوگا۔ واسا تاجپورہ اور ملحقہ آبادیوں سے بارشی پانی کو واٹر ٹینک میں جمع کر کے محفوظ بنائے گا۔ واسا حکام کے مطابق 80 کروڑ سے زائد لاگت ہونے کے باعث تاجپورہ واٹر ٹینک کو منظوری کے لیے PND بھجوایا گیا تھا۔ کام کے مطابق واٹر سٹوریج ٹینکوں کے ٹینڈرز پروسیس مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 2 ماہ میں مکمل ہونے والا قذافی واٹر ٹینک 40 لاکھ گیلن سٹوریج کی استعداد کا رکھتا ہے۔ واسا نے 6 ارب کی لاگت سے 8 مزید واٹر ٹینک منصوبے پر بھی کام شروع کر رکھا ہے۔ لیسکو کا صارفین کو AMR سمارٹ میٹرز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ PIU PITC کو 26,000 کنیکشنز کے لیے سمارٹ میٹرز کی سمز تیار کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ مئی 2025 کے تمام میٹرز لیسکو کو مل جائیں گے۔ لیسکو نے صارفین کو AMR سمارٹ میٹرز فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو نے PITC کو 26,000 کنیکشنز کے لیے سمارٹ میٹرز کی سمز تیار کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ مئی 2025 کے تمام میٹرز لیسکو کو مل جائیں گے۔ لیسکو نے 26,623 AMR سمارٹ میٹرز کی خریداری کا پرچیز آرڈر جاری کر دیا۔ کمپنی کو 11,000 میٹرز کا سٹاک مل چکا ہے۔ دستاویزات کے مطابق پرچیز آرڈر کے بقایا 15,323 میٹرز کا سٹاک آئندہ سال مل جائے گا۔ مئی 2025 کے تمام میٹرز لیسکو کو مل جائیں گے۔ AMR سمارٹ میٹرز نیو کنیکشن اور سولر کنیکشن میں استعمال ہو سکیں گے۔ لیسکو نے 15 نومبر سے گرین بار ڈائریکشنل میٹرز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اب AMR سمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے لیے اضافی فنڈ منظور۔ ڈیجیٹل میڈیا مانیٹرنگ سافٹ ویئرز، جدید آلات و گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ CTD پنجاب کو 1 ارب 90 کروڑ کے اضافی فنڈ ملیں گے۔ 10 سال پرانی بم پروف گاڑیاں تبدیل کی جائیں گی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹرک کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو متحرک کرنے کا معاملہ۔ اتھارٹی کو متحرک کرنے کے لیے پولیس کی نفری فراہم کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ مرحلہ وار 7,000 کے قریب نفری فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 1,000 جوان فراہم کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 56 انفورسمنٹ اسٹیشنز کو متحرک کیا جائے گا۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو متحرک کرنے کے لیے پولیس کی نفری فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ مرحلہ وار 7,000 کے قریب نفری فراہم کی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ برانچ نے پہلے مرحلے میں 1,000 نفری فراہم کرنے کے لیے تمام اضلاع کو تفصیلات بھجوا دی۔ تمام اضلاع کو نفری کے بہانہ بنانے سے روکنے کے لیے زیر تربیت کانسٹیبلز کی تفصیلات فراہم کر دی گئیں۔ فراہم کی جانے والی نفری کی سیٹس کو زیر تربیت جوان واپس آ کر پر کریں گے۔ تمام اضلاع کو 5 جنوری تک مطلوبہ تعداد میں کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کی اسکریننگ کر کے کلیئرنس رپورٹ بھجوانے کا حکم دے دیا گیا۔ پنجاب بھر میں 154 انفورسمنٹ اسٹیشنز کے لیے 154 سب انسپیکٹر، 308 ہیڈ کانسٹیبلز اور 6,960 افسران و اہلکار 2 مرحلے میں فراہم کیے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ برانچ کی جانب سے تمام اضلاع کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے سلسلے میں سفر بے نظیر ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ سفر بے نظیر ٹرین میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما سمیت جیالے اور جالیاں شہید بی بی کی برسی منانے کے لیے بھی محو سفر ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے سلسلے میں جو سفر بے نظیر ٹرین ہے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ٹرین رحیم یار خان جو ہے وہ کراس کر رہی ہے، جبکہ اس ٹرین میں جیالوں کے ساتھ ساتھ جیالیاں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت ہے وہ بھی اس ٹرین میں موجود ہے۔ اس ٹرین میں اگر بات کی جائے تو تقریباً 1,000 کے قریب جو جیالے اور جیالیاں ہیں وہ اپنی محبوب قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منانے کے لیے جو ہے وہ گڑی خدا بخش روانہ ہوئے تھے دوپہر 2 بجے کے قریب لاہور سے گزشتہ روز، اور اب یہ ٹرین جو ہے یہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ اس ٹرین کی قیادت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرزا کر رہے ہیں، جبکہ اس ٹرین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما جن میں فیصل مین سمیت دیگر جو موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مختلف اسٹیشنز پہ یہ ٹرین کا قیام ہوا، سارے دن ہم نے دیکھا کہ جو جیالے اور جیالیاں تھیں وہ اس سفر میں جو شامل ہوتے گئے، اور جو اسٹیشن تھے اور ٹرین تھی وہ جیے بھٹو کے نعروں سے بھی گونجتا رہا، جبکہ ٹرین جو ہے یہ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ گڑی خدا بخش، اس کے بعد جو ہے
ट्रेन के जो ज़ायरीन हैं, जो ट्रेन जो सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर हैं, वो गड़ी खुदा शहीद के ख़ानदान की जो कब्रें हैं वहाँ पे हाज़िरी देंगे, वहाँ पे फातिहा ख़ानी जो है वो की जाएगी, जबकि उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे बरसी के हवाले से जो है वो तकरीब मुनक़िद की जाएगी, जलसा आम होगा, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी शरीक होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कि ब्रायलर माफिया बेलगाम हो गया, इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। नौरोज में ब्रायलर गोश्त 146 रुपये किलो तक महंगा, कीमत 548 रुपये की बुलंद सतह को छू गई। आज भी ब्रायलर गोश्त 29 रुपये किलो महंगा हो गया। गोश्त की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। जिंदा ब्रायलर परचून में 378 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 5 रुपये इजाफे से 329 रुपये दर्जन हो गए। ब्रायलर माफिया बेलगाम हो गया, इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। 9 रोज में ब्रायलर गोश्त 146 रुपए किलो तक महंगा हो गया, कीमत 548 रुपए की बुलंद सतह को छू गई। ब्रायलर गोश्त 29 रुपए किलो महंगा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों का ना थमने वाला तूफान जारी है। जुमेरात को ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 548 रुपए फी किलोग्राम हो गया। जिंदा 364 रुपए और परचून में 378 रुपए किलो फरोख्त जारी है। 9 रोज में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 146 रुपए किलो महंगा हुआ, जबकि 5 रुपए इजाफे से फार्मी अंडे 329 रुपए दर्जन हो गए। शहर के बाज इलाकों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 480 और 500 रुपए तक भी फरोख्त होता रहा। शहरी कहते हैं जो सेलर्स 480 और 500 रुपए फी किलोग्राम बेच रहे हैं, उन्हें भी तो मुनाफा मिल रहा है। पंजाब हुकूमत क्यों सरकारी सतह पर कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे रही है? फौरी कर्ज की फ्राहमी सार्फिन फ्रॉड से ना बच सकी। रवां साल गैर कानूनी एप्लीकेशन की तादाद में कई गुना इजाफा होने लगा। फौरी कर्ज की फ्राहमी की आड़ में शहरी अपनी जमा पूंजी से हाथ धोने लगे। दर्जनों ऐप्स का हमसाया ममालिक से ऑपरेट होने का भी इंकशाफ हुआ। सारिफीन जालसाजों के चुंगल से ना बच सके। फौरी और मुसलसल कर्ज की फराहमी की आड़ में शहरी अपनी जमा पूंजी से हाथ धोने लगे। रवां साल आसान कर्ज फराहम करने वाली गैर कानूनी एप्लीकेशंस की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया। ऑनलाइन कर्जा देने वाली दर्जनों ऐप्स का हमसाया ममालिक से ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक मुतादिद ऐप्स मामूली कर्जा फराहम करने के बाद भारी सूद का तकाजा भी करती हैं। गैर रजिस्टर्ड ऐप से इन्वेस्टमेंट कर्ज के लालच में जाती डाटा तक रिसाई हासिल की जा रही है। जाती मालूमात तक रिसाई के बाद ब्लैकमेल और हरासा करने के भी मुतादिद केसेस सामने आए हैं। SCCP ने मुनज़्ज़म ठग माफिया के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर इक़दामात के लिए कोशिशें शुरू कर दी। SCCP की जानिब से जालसाजों के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के तहत मुस्तकिल इक़दामात किए जा रहे हैं। लिदड़गांव मेयर टाउन के मकीन बिजली की अदम फराहमी से परेशान। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में पानी न होने से मामूलात जिंदगी मुतासर। मामला जो के तू हैं, मकीनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लिदड़ गांव के मेयर टाउन के मकीन बिजली की अदम फरहमी से परेशान। गुज़श्ता रोज से इलाके में बिजली गायब। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मकीन कहते हैं बिजली की अदम फरहमी से मसाइल का सामना है। पानी न होने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। पानी का मसला, पानी नहीं आ रहा है, बच्चे पानी से तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं। अब सुबह का भी ये काम चल रहा है, बिजली नहीं आ रही, सुबह की नहीं आ रही। मेयर टाउन का सारा सीवरेज ब्लॉक हुआ है, तो LWMC वालों को बोलते वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। सफाई का प्रॉपर कोई काम नहीं हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके की हालत खस्ता हाल, सीवरेज निजाम भी नाकारा हो चुका। ये वहाँ में ना जो गरीब है इसके साथ ज्यादती हो रही है। बराए मेहरबानी हम पर कोई कर्म करें, ये कुछ टीमें भेजें इधर। जुत्तियां ला के था, जुत्तियां फड़ियां होंदियां ने, पानी दे विचों गुजरदियां ने। बहुत साडा मंदा हाल है। सवेर दी बत्ती नहीं आउण डई, सवेर दे साडे भांडे उतरा ही पए ने। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा किया। बोले कि मसाइल हल न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लॉयर मॉल नसीरुद्दीन रोड से मुल्हिका तारीखी पार्क बाबा ग्राउंड अपनी शान खो चुका है। पार्क के गिर्द जंगली इंतजामिया बेतवज्जी से के सबब नशे के आदी अफराद की नजर हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा ग्राउंड में।
बाबा ग्राउंड एक तारीखी अहमियत का हामिल लाहौर का एक बहुत बड़ा बाग है, जो कि नसीरुद्दीन रोड, जो कि लोअर माल से मलिका एक रोड है, उस पर वाक़ है। लेकिन अगर इस बाग की बात कर ली जाए तो इस बाग ने जो है वो जितने बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार किए, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जो कि आज बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की मालियत जो है, सरकारी इमलाक जो है, उसका ना सिर्फ बेतरीक इस्तेमाल हो रहा है बल्कि वो नशे के आदी अफराद की नज़र हो रही है। इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं जो कि कई साल से इस पार्क को सर्व कर रहे हैं। उससे जान लेते हैं कि किन मसाइल का सामना जो दिन भी यहाँ पर होते हैं, रात भी यहाँ पर होते हैं, और क्या क्या मसाइल देखते हैं। मुझे बताएगा कि किन मसाइल को जो है वो आप यहाँ पर देखते हैं और चाहते हैं कि वो मसाइल हल हो, और हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका इस सवाल? सर जी, ये आपके सामने लाइट्स के पोल लगे हुए हैं, ये 3-3.5 करोड़ के पोल हैं। 1 करोड़ रुपए का जनरेटर है जो कि एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुआ, 0 मीटर है, सारे जंग आलूद हो रहे हैं ये लोग बड़ी बड़ी। ये आपके सामने सारी ग्राउंड के जंगले हैं, सारे नशई तोड़ के लेके जा चुके हैं। ये किसका नुकसान हो रहा है मुझे बताइए? गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, किसका नुकसान है ये? जी बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीख पात है और उनका गुस्सा होना बिल्कुल वजह है, क्योंकि अगर इस पार्क की हालत देख ली जाए तो इंतहाई अफसोस होता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आके खेलते रहे, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर आके खेलते बने और आज मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जब इस पार्क की हालत को देखते हैं तो उनका गुस्सा होना बजाय है, क्योंकि आज ये पार्क जिसको बच्चों के लिए एक बेहतर नशो। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगने का मकरू कारोबार अरूज पर है। शहर के चौक, चौराहों और सिग्नल्स पर मांगने वालों की बहुतात। क्रीम ब्लॉक सिग्नल, भेकेवाल मोड़, कैंपस पुल, FC पुल अधिकतर इलाके बेकारियों के हॉट फेवरेट हैं। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन अलग से। जी हसनैन। बिल्कुल, भीख मांगना एक लानत है, लेकिन लाहौर में जो भीख मांगना है वो एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में जब आप रुकते हैं तो आपको नज़र आता है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर मांग रहे होते हैं। कहीं पर ख्वाजा सरा जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे मांग रहे होते हैं, तो कहीं पर बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ अशिया बेचने के लालच देकर या फिर वो अपनी बुज़ुर्गी का वास्ता दे करके, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी हेल्प की जाए। इसी तरह से कुछ बुज़ुर्ग अफराद भी हैं जो कि मांगते हैं मुख्तलिफ हीले बहाने करके। तो ये जो भीख मांगना है एक बहुत बड़ी लानत तो है ही, लेकिन एक पेशे की सूरत इख्तियार कर गया है। और शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर, मुख्तलिफ सिग्नल्स के ऊपर अगर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों की, जैसे कि बेकेवाल मोड़ की बात की जाए या फिर क्रीम ब्लॉक सिग्नल की बात की जाए, इसी तरह कैंपस पुल की अगर बात की जाए या फिर FC पुल की बात की जाए, मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो आपको सिग्नल्स के ऊपर ये जो भिखारी हैं या फिर प्रोफेशनल ये जो मांगने वाले हैं आपको दिखाई देंगे, मांगते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए इसकी रोकथाम की तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनकी जानिब से खातर ख्वाह जो इक़दाम न होने की वजह से बच्चे हमें भीख मांगते दिखाई देते हैं। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गंगाराम नर्सिंग कॉलेज की तालिबा की खुदसूजी की कोशिश, वज़ीर आला के 3 अफसरान के खिलाफ पीड एक्ट के तहत इंक्वायरी की मंजूरी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। गंगाराम नर्सिंग कॉलेज की तालिबा की खुदसूजी की कोशिश के वाक़या पर साबिक प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज गंगाराम खालिदा जमी, हेड नर्स सईदा सहर मुमताज़ और इरम अनवर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। साबिक प्रिंसिपल पर हेड नर्स से सरकारी काम के एवज 3 लाख रुपए रिश्वत मांगने और खुदसूजी की कोशिश करने वाली तालिबा को हिरासा करने का इल्ज़ाम है। हेड नर्स सईदा सहर मुमताज़ पर फीस में करप्शन और गैर मुतल्लिका अफराद को गर्ल्स हॉस्टल में दाखिले की इजाज़त देने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। PIACL मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की दरखास्त का मामला। वज़ारत निजकारी ने PIACL से मालियाती तखमीने तलब कर लिए। PIA से तनख्वाहों में इजाफे के साथ आइंदा 12 माह के मालियाती खसारे की तफसील भी तलब की गई है। PIACL की कारकर्दगी का मंजूर शुदा बिजनेस प्लान से मवाजना भी तलब कर लिया गया है। वज़ारत निजकारी ने PIACL इंतजामिया को तफसीलात फौरी फ्राहम करने की हिदायत कर दी। ख़त में मुलाज़मीन की तनख्वाहों के इजाफे के असरात पर भी रिपोर्ट तलब की गई। PIACL की 30 जून से अब तक बिजनेस प्लान के तहत कारकर्दगी का जायजा पेश करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हल्का PP 153 के इलाके ताजबाग में 90 करोड़ रुपए की खतीर से वाटर टैंक लगवाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने PP 153 में नया पुल, लालपुर, फतेहगढ़ और ताजबाग का दौरा किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर और दीगर भी हमरा थे।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौके पर राहगीरों से भी बातचीत की। मुतल्लिका अफसरान ने इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि PP 153 के रहायशों की आसानी के लिए नया पुल लालपुर, फतेहगढ़ और ताजबाग में मुरम्मत का काम जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की 8 रोज़ा निजी दौरे पर बैरून मुल्क रवान की। जस्टिस अली बाकर नजवी ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मकाम चीफ जस्टिस अली बाकर नजवी से हलफ लिया। तकरीब में प्रिंसिपल सीट पर समाअत करने वाले जजेस साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अहसन भून, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक, प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट समेत दीगर बार ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस मसूद आबिद नकवी समेत दीगर भी शरीक हुए। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगराम पुरानी अनारकली की तकरीब हल्फ बरादरी का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद, मियां अतीकुर रहमान, मुआज़्ज़म वहीद समेत ताजर कायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़रगरा पुरानी अनारकली की तकरीब हल्फ बर्दारी सफावाला चौक में हुई। 9 मुंतखिब ओहदेदारान सदर जाहिद फसी, चेयरमैन मोहम्मद अमीन, सीनियर वाइस चेयरमैन मुअज़्ज़म वहीद, सीनियर नाइब सदर सिकंदर भट्ट, नाइब सदर मतीन जावेद, जनरल सेक्रेटरी हम्माद मकसूद गिल, ज्वाइंट सेक्रेटरी अतीक अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी सरफराज अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद ने 9 मुंतखिब ओहदेदारान से हलफ लिया। साहब और उनकी टीम को एसोसिएशन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके ग्रुप ने दिन रात मेहनत करके एसोसिएशन का 14 साल के वक्फे के बाद इंतखाबात जीता है। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल, सदर इत्तेहाद ग्रुप मियां अतीकुर रहमान, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज और दीगर ताजिर कायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई और 9 मुंतखिब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने लोगों के लिए काम करेंगे जिनकी वजह से ये आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ताउन हर दम आपके साथ होगा। एक बात करूँगा कि ये इलेक्शन लड़ लेना, इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर जाना, कामयाब हो जाना, ये एक अमल है। असल बात जो ये है, इलेक्शन के बाद आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उस पे सही तरीके से नबर आजमा होना, ये है असल इलेक्शन। 9 मुंतखिब ओहदेदारान अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा ने ज्वेलर्स बरादरी के मसाइल के हल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सनतजार एक्सपो 2024 का इनेकाद महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की जानिब से एहतमाम किया गया। हैंडीक्राफ्ट और छोटी सनत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ कारोबारी स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलहमरा आर्ट कौंसिल में महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सनतजार एक्सपो 2024 का इनकाद हुआ। हैंडीक्राफ्ट और छोटी सनत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ कारोबारी स्टॉल सजाए गए। ऐसी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई काम कर रही हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आके वो ये एक्सपीरियंस करें कि आपका जो फिजिकल क्लाइंट है उसकी मतलब 1 to 1 आपसे बात हो सके। उनकी अरेंजमेंट और सब कुछ बहुत अच्छा है और ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि जो वुमेंस घर में बैठ के काम करती हैं और वो उनको ऑनलाइन सेल करती हैं, वो उससे ज़्यादा बेस्ट ये है कि वो इस तरह से आके अपने एग्जिबिट करें कि आपके पास क्या क्या है और आप अपने दिखा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाथ से बने डेकोरेशन, कपड़े समेत दीगर स्टॉल्स लगाए गए। शुरा ने एक्सपो को खुशाइंद करार दिया। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत अच्छे लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ ऐसे स्टॉल्स और अब मौके नहीं मिलते लड़कियों को करने के, तो अगर ऐसे एक्सपोज लगेंगे तो लड़कियों को और मौके मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी प्रोजेक्ट दिया अंदर। यहाँ पे इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है और ये इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी देखें और देखें कि पाकिस्तान भी बहुत आगे पीछे नहीं है। एक्सपो में कवाली और गाने का भी एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में शहरियों ने स्टॉल्स का रुख किया और खरीदारी भी करते रहे। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर।
ओस्टर आर्ट गैलरी में मिनिएचर आर्ट पर बनाई तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर फकीर खान म्यूजियम फकीर सलाहुद्दीन ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। शुरा की जानिब से भी मिनिएचर पर बनाए गए फनपारों को खूब सराहा गया। अपनी पहचान खो रहे मिनिएचर आर्ट के फरोग के लिए ओस्टर आर्ट गैलरी की जानिब से मिनिएचर आर्ट पर बनी तस्वीरों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टर फकीर खान म्यूजियम फकीर सलाहुद्दीन ने फीता काट कर किया। इस मौके पर इनका कहना था कि मिनिएचर आर्ट अब तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। मिनिएचर आर्ट और तख्लीकारों को फरोग देने की जरूरत है। मिनिएचर इज आवर आर्ट। हम लोग मिनिएचर्स बनाते थे, हमारे जिसको हम चित्रकारी या चित्रकार कहते हैं, और ये हमेशा मिनिएचर को ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया। और ओस्टर आर्ट गैलरी का मैं शुक्रगुजार हूँ जो ख़ास अपना वक्त निकाल के मिनिएचर को पे वक्त देते हैं और इन नौजवान बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। मिनिएचर आर्ट नुमाइश में 35 मुसव्विरों का काम डिस्प्ले किया गया। शुरा की जानिब से दौरे कदीम के इस आर्ट को बेहद पसंद किया गया। इन पेंटिंग्स में इस तरह का मैंने काम शो किया हुआ कि स्प्लैशेस हैं और उसके ऊपर जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने पैटर्न्स बनाए हैं। इसका मतलब मैंने ये रखा हुआ है कि जब हम लोग कुछ स्प्लैशेस फेंकते हैं तो कुछ लोगों को वो लगता है अच्छा ये गंदगी फैली हुई है। जो हम चाहते हैं ना दुनिया से, जैसा हम देखना चाहते हैं दुनिया को, हमें वो वैसी नज़र आती है। तो मेरी इन पेंटिंग्स का ये थीम है। जो एग्जीबिशन है वो बेसिकली ओवरऑल सारी मिनिएचर पेंटिंग की है और जिस तरह से इन्होंने गैलरी वालों ने पूरी एग्जीबिशन को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। नुमाइश में ओस्टर आर्ट गैलरी के ओनर मोहम्मद वारिस और दीगर मौजूद थे। मिनिएचर आर्ट ही तस्वीरें बनाने की असल इब्तिदा है। अफशान रिजवान, सिटी 42, लाहौर। अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामा झूठा सच्चाई की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। फनकारों ने अपने अपने किरदारों के मुताबिक परफॉर्म किया। ओयू के क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी का नया स्टेज ड्रामा झूठा सच्चाई 27 और 28 दिसंबर को अलहमरा आर्ट सेंटर में पेश किया जाएगा। ड्रामे के हिदायतकार अनीबुल्ला खान और प्रोड्यूसर राबिया अनीब हैं। ड्रामे में नौजवान फनकार काम कर रहे हैं। ड्रामा समाजी और माशरती मसाइल पर मबनी है, जिसकी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और नौजवान फनकारों ने अपने अपने किरदारों के मुताबिक परफॉर्म किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।